So let me recall yesterday's problem. It was not completed yesterday. I am just recalling. Just recap. ग्राफ तो उसका हमने बना दिया था ना. प्रॉब्लम वाज क्या थी प्रॉब्लम भाई? Maximum of z is equal to 4x1 plus 3x2. Max of z is equal to how much? 4x1 plus 3x plus 3x2. अच्छा ये प्रॉब्लम थी. yes 301 page 65. yesterday I shared you the short copy, scanned copy of the selected chapter of the book है ना, which is unit 1 actually. Yes, sir. तो आप उसपे से देख सकते हैं सब चीजें. I am mentioning problem number, page number also. It was the problem. This is the objective function and two constants were given to you. As I told you that problem carrying two variables, two decision variables can be solved easily through graphical method. यही था भाई. 700 था and x1 x2 was positive, non negative. Sir, एक restriction रह गई. कौन सी थी? 2x1 plus x2 smaller than 1000. Okay, 2x1 plus x2 less than equal to 1000. ठीक, ये थे. तो we plotted the graph क्योंकि solution main point solution निकालना तो रही गया था आपका ना. So it was I change always you will do like this as I told you yesterday. You will change it into intercept form. So it will become x1 500, x2 1000. So you got suppose this, and because less than equal to, so always mark the arrow. It will not confuse you if you have so many lines, so many constants. So less than means towards the origin. Keep in mind this is your origin. Because of this non-negative restriction, I will be restricting myself only in the first quadrant. It is your x1 x2 axis. So this is your 1000. This is how much? 500 है ना. It was your first constant. Then second constant is x1 plus x2 less than equal to 800. So this I can take, suppose I am taking by this green color. So it will be what? 800 and 800. So you can have like this. Suppose it is your 800 on x1 axis. This is x2. And it is also less than equal to. So again, you will be taking towards the origin. And they will be crossing each other. You can find the point of intersection easily, no problem, I think. It's a simple two equations, linear equation. ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हम फाइंड करेंगे इसे. Then x1 less than equal to 400. So this is your 400. Suppose it is 500. So near here somewhere it is 400. So I am taking a line parallel to x2 axis. This is 400 and it is also less than equal to, so it is again towards the origin. And then now last is x2 less than equal to 700. See, इसे ले लेते हैं different color से. 700. So 700 is, it is 800. So 700 और यहाँ कहीं below इसके नीचे आएगा. It will be here somewhere. Suppose this. It is your line. x2 is equal to 700 है ना. ये 700 है. It is also less than. So again this side. So you can see here okay, where you got this region, the shaded region, which is common in all the inequalities, and here and not this point, keep in mind. Inside this region you will get the point where your function will give you the maximum profit है या जो भी प्रॉब्लम में होगा ना, यहाँ मैक्सिमाइज करना में, which will give you the maximum value of z. So here you can see डॉट एक है जी. इसका हमने सर, यहाँ पे हमने 500 कैसे चूज किया सर पॉइंट? कौन सा पॉइंट? ये 500 x1 पॉइंट, x1 लाइन पे. ये लाइन है ना आपकी, ये इस लाइन का है. दिस इज अ लाइन 2x1 plus x2 is equal to 1000. जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है हमने x1 upon 500
प्लस x2 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x1 पे 500 इंटरसेप्ट करेगा ये और x2 पे 1000। ओके सर, ओके। इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन ली हमने। सो यू गॉट OP, दिस इज योर Q, this is your R, this is suppose S, and this is T. Yeah. So here in this region, you know, there are infinite many points. Infinite points है इस region में, क्यों भाई? How many points are there? Yes, sir. Infinite points है। अब हमें वो point चाहिए जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो और इन सारी इनइक्वालिटीज को होल्ड करे। तो ये रीजन तो वही आ गया जो सारी इनइक्वालिटीज होल्ड हो रही हैं। बट पॉइंट कैसे Yes, चूज sir. करेंगे? हाँ, तो एक थ्योरम है जो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, वो थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। थ्योरम ये कहती है कि द ऑप्टिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द feasible region. Extreme points means at the corner points, actually at the corner points there is one-to-one correspondence between the optimum solution and this corner points. तो यहाँ पर हमें corner points जब भी मिलेंगे हमेशा क्या होंगे? वो तो finite ही होंगे। देखो है ना, how many corner points are there? O, P, Q, R, S, T. क्या बताया था? There is a result कि whenever you have a feasible region, तो feasible region आपका जब bounded आएगा, ये bounded है, so there is a हाँ, तो there is a result that there will exist optimum solution at the extreme points, at the extreme points of the feasible region। ठीक है, तो उससे हम यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 5 पॉइंट्स मिले हमें। 6। तो इन्हीं पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर हमें ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये आपकी जो है, अब यहाँ पर रिजल्ट लगाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड द 6 point है ना? हाँ, so this is called extreme point correspondence fundamental theorem कि if the feasible region, fundamental theorem of linear programming है, if the feasible region of an LPP is a convex polyhedron, ये सब वर्ड मैं भी इसलिए यूज नहीं करना चाह रहा था क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा आगे। तो आगे रिजल्ट यही है कि then there exists an optimal solution to the LPP and at least one basic feasible solution must be optimal। और वो बेसिक feasible solution क्या होता है आपका? वो करस्पॉन्ड करता है आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट करस्पॉन्डेंस। ओके, तो सीधी सी बात अभी आप इतना समझ लें कि जो भी हमारे पास फीजिबल रीजन आएगा और उसके जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, वो एक्सट्रीम पॉइंट ही आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे। तो हम क्या करेंगे? उन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपकी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही होगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम ले लेंगे आपका, वो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी है ना, वो ले लेंगे। इज इट क्लियर? तो हियर यू हैव टू मार्क्स ऑल द पॉइंट्स फर्स्टली, है ना। तो फिर दैट में डाल देंगे सर, जिसमें मैक्सिमम हाँ। वैल्यू आएगी वो पॉइंट होगा। बस, तो द रिजल्ट इज व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, द ऑप्टिमम वैल्यू of the objective function, of the objective function, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे ये बात, occurs at one of the extreme point, one of the extreme points of the feasible region, of the feasible region। ठीक है, feasible region क्या होता है? जो आपका कॉन्स्टेंट, जो कॉमन रीजन आ जाता है सेटिस्फाइंग ऑल द कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे इन सारे कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है ये, तो दिस इज योर फीजिबल रीजन ना। फीजिबल रीजन में ही हमें क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ ऑप्टिमा। तो वो पॉइंट क्या होता है? यस, तो वो ऑप्टिमम वैल्यू हमेशा कहाँ करेगी? एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो व्हाट आई हैव टू फाइंड नाउ, आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द एक्सट्रीम पॉइंट, व्हिच इज क्वाइट इजी वर्क, है ना। आई कैन फाइंड इजीली, देखो ओ पी क्यू आर। तो यहाँ पर हम एक्सट्रीम पॉइंट लिख सकते हैं इजीली।
सर मिनिमम वैल्यू भी इसी में मिलेगी ना? मिनिमम भी इसी में मिलेगी। अगर ये मिनिमम की प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे आई विल राइट एक्सट्रीम पॉइंट्स, हियर आई विल टेक वैल्यू ऑफ z। तो फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट था आपका o था 0 0, है ना। z की वैल्यू क्या थी, व्हाट वाज z, 4x1 प्लस 3x2। तो 0 0 पे तो z कितना हो गया, 0, 0 है ना। 0 नेक्स्ट पॉइंट आई चोज, आई वाज हैविंग p कोऑर्डिनेट क्या है बताओ जरा, 400 तो 400 400 0 0. yes, so p is 400 comma 0. What is the value of z now, 1600. 1600 1600 Yes. Now q देखिए, q is the intersection 400, of 200. this line and this line। 400 200 यहाँ पे रख दो इस लाइन पे, है ना, 400 400 200 ठीक है, 400 200 इजीली निकाल सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं। व्हाट इज z, 2200. 2200 2200। देन नेक्स्ट पॉइंट इज r, r देखते हैं, r is how much, 200 600. इंटरसेक्शन 200 ऑफ 600 200 600 ना, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आपकी है x1 plus x2 800। इसे सॉल्व कर लेंगे, 200 and 600। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z हियर, 2600. 26। देखो वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जा रही है। देन आई विल टेक s, s इज हाउ मच, s था, हाँ ये 100 s, 700. तो x2 तो 700 है ना, यहाँ 700 रख दिया हमने, 700 900 ओके 100 700. 100 700 ठीक है। यस पॉइंट सही लिखिएगा ध्यान से, अगर ये चेंज करा तो वैल्यू बदल जाएगी z। इट इज हाउ मच, 2500. 2500 2500 ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज 0 कॉमा हाउ मच, t क्या था, 800 700. 700 है ना ये पॉइंट, 0 कॉमा 700। so here the z value is how much, 2100 2100 now you can easily that this is the highest value, है ना, so this is the highest maximum value, so it means what, thus the optimum solution occurs at r, thus the optimum solution exists at point r 200 comma 600। तो यहाँ पर x, ये बेसिकली जो हमने प्रॉब्लम ली थी, एक प्रॉब्लम ये आपकी बेल्ट की प्रॉब्लम थी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ बेल्ट्स, तो उसमें नंबर ऑफ बेल्ट्स हमने मानी थी x1 नंबर ऑफ बेल्ट्स टाइप ए, x2 नंबर ऑफ बेल्ट्स टाइप बी। तो उसमें ये निकल के आएगा कि 200 अगर टाइप ए बेल्ट बनाए और 600 टाइप बी बेल्ट बनाए अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स, तो जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा आपका ये, है ना। इस प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो वो आपकी ये बेल्ट की प्रॉब्लम, हेंस द प्रॉफिट इज मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू 2600, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। तो समझ में आया भाई कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को हमें? Yes sir. yes sir यस सर। तो ग्राफिकल मेथड, सिंपल मेथड, ग्राफिकल में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो यू कैन सॉल्व इट इजीली and you can find the feasible region easily and then you can mark the points easily। प्रॉब्लम 302 है, इसे आप अपने आप करिएगा। One more problem I am taking, 303। A feasible region may be unbounded। डायरेक्ट प्रॉब्लम लिख रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम इज मिनिमाइज है नॉट मैक्सिमाइज, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 20x। मेन सर उसको इक्वेशन बनाना है, बाकी सॉल्व तो हो जाएंगी। हाँ ये भी आपकी प्रॉब्लम में नॉर्मली जो है गिवन, अगर फॉर्मुलेशन के लिए आता है तो आपको थोड़ा सा सारे चीजें ध्यान में रखनी होंगी, लेकिन आपका द गुड थिंग इन योर कॉम्पिटिशंस एग्जाम्स में फॉर्मुलेशन नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, उसमें आपको प्रॉब्लम दे रखी होगी तो सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन यू शुड नो हाउ टू फॉर्मुलेट। यस सर।
हाँ, इसलिए मैंने शुरू के जो था आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम, ताकि आप इससे कभी प्रॉब्लम हो फ्यूचर में तो आप कर सकें। ये आपके यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट्स के भी ना मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इक्वलिटी से आपकी ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे प्लॉट करेंगे, ये सब डिविजिबल है तो ये इजीली आ जाएगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर इस इक्वेशन को ले आऊँ इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं, तो व्हाट आई कैन राइट x1 अपॉन हाउ मच by 3 3 प्लस 18 हो जाएगा। ये कितना है x2 upon 18 x2 by 18 18 या 8 18 अच्छा 18 हाँ 6 है, 3 था। ठीक है, इज इक्वल टू 1 है ना। तो फर्स्ट थिंग यू गॉट x1 पर 3 है, x2 पर 18 है, तो सपोज ये x2 एक्सिस है, इसे x2 ले लीजिए और 3 आपका इधर कहीं नियर आएगा। एज आई टोल्ड यू ग्राफ आपको एक रफ प्लॉट करना है, लेकिन ऐसा हो रफ के आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि 3 यहाँ पर हो तो 18 यहाँ हो, है ना, इतना एब्सर्ड सा नहीं हो। अब आपको यू कैन सी के इट इज 3 इट इज 18 ये, और बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू देखो अब, तो वेयर विल बी द साइन, वेयर विल बी द रीजन अपवर्ड अपवर्ड, यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो आई एम away from टेकिंग origin। एरो, हमने ये लगा दिया, इट मींस आई विल टेक दिस। सेकंड इक्वेशन इज दिस वन x1 अपॉन 12 12 12 x2 अपॉन x2 3 upon 3 इक्वलिटी में इसे सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है ना, लेकिन रीजन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इसलिए। सो x1 पर 12 है, सपोज हियर इट इज 12, हियर इट इज 3, so I am taking suppose this like this, it is 12, it is 3 तो and ये भी region अपवर्ड है। अपवर्ड है ना, तो कॉमन आपका ये वाला आ रहा है, इसमें ये है, ये कॉमन है। अभी वन मोर इक्वेशन इज देयर, थर्ड वन इज दिस वन 5 x1 upon x1 by 5 5 plus x2 upon 5 10 10 10 10 is equal to 1. So x1 5, suppose here it is 5 somewhere, here it is 10, so you can take different colors से ले लेते हैं। So here zoom में पढ़ा रहे हैं तो फिर we can use this easily, ये ऐसे क्लोज करो। जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता था तो इसके लिए मैं डिफरेंट चॉक्स ले जाया करता था, ताकि बोर्ड पे रीजन जरा इजीली दिख जाए। ओके, सो कॉमन रीजन यू कैन सी हियर, व्हाट इज द कॉमन रीजन, दिस है ना, क्योंकि इट इज आल्सो अवे, तो यू गॉट दिस, Yes. सर ये यहाँ से ये सारा है ना, विच इज अनबाउंडेड, इनफैक्ट ये अनबाउंडेड है ना, एंड यू गॉट 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स, है ना, you got 4 corner points, suppose A B C D, A B C and D, and this is unbounded। देखो अब अगर अनबाउंडेड है तो आई विल लुक एट द प्रॉब्लम कि व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइजेशन ऑफ z, देन नो प्रॉब्लम, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन कैन गिव यू अ सॉल्यूशन। क्योंकि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो मिनिमाइजेशन में हमें वो पॉइंट चाहिए जो मिनिमाइज कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आगे जो वैल्यू x1 x2 की है ये क्या करेंगी, दे विल मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ z। तो अगर यही प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइज z होती तो क्या होता है यहाँ पे सॉल्यूशन, no solution। अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाता। सॉल्यूशन तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, अनबाउंडेड होते हैं, आप वैल्यू रखते चले जाओ, इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। बट बिकॉज इट्स अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, आई विल बी हैविंग अ सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में आई कैन फाइंड extreme points, you got A B C D, तो A is 12,0 on the x-axis, B is solve कर सकते हैं आप इन 2 लाइंस को, है ना, ये कौन कौन सी लाइंस है, दिस एंड दिस, फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन, इससे सॉल्व करेंगे, इट इज कमिंग 4,2 इन दोनों को। C point is
C you can solve. C is a this 18 वाली लाइन, ये वाली लाइन है, और कौन सी है C? ग्रीन कलर की लाइन कौन सी थी? ये पॉइंट हमने लिया था 10 था ना ये, हाँ ये है, ये और ये, इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कमिंग 2,6 and D you can get, D is on the y x2 axis, so 0,80. ठीक है, 0,80. So value of Z is how much? This is your points. Values of Z you can find. Z is 20x1 plus 4x2. So 12. So how much it is? 240. And 4,2. 240. 16. 160. 2,6. How much? 280. 280. 280, sir. And 0,18. 20. 7. Or 720. 20. So here you can see this is the, because it's a minimum value, so this is the minimum value, है ना? This is minimum. Yes, sir. इससे ज्यादा minimum इसकी value नहीं हो सकती. So it means optimal solution is 160 at the point 4,2. So the minimum of Z is 160 at the point B 4,2. ये 4,2 आपके अगर कुछ प्रोडक्ट्स थे x1 x2, तो you can say कि x1 product, product A should be in quantity 4, second product should be 2, so that the loss, minimized loss is this, है ना? क्योंकि minimization problem है तो शायद loss की problem होगी. तो I was telling कि अगर ये maximize की problem होती तो क्या होता है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट्स तो होते नहीं, तो आप कितना वैल्यू रखते जाओ Z की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है ना, बिकॉज इट्स अनबाउंडेड. तो उस केस में हम क्या लिख देते हैं, अनबाउंडेड केस हो जाता. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यू विल सी कि मिनिमाइजेशन Yes, प्रॉब्लम sir. जो होगी, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम विल ऑलवेज हैविंग अ सॉल्यूशन, क्योंकि मिनिमाइज में हमारे पास ऑलरेडी हमें बाउंडेड कोई ना कोई रीजन मिल जाएगा, क्योंकि यू नो कि हमारे पास ऑलरेडी एक बाउंड्री है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, बिकॉज ऑफ दिस. तो मिनिमाइजेशन में हम पीछे इससे क्रॉस तो कर ही नहीं सकते कभी, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहेंगे, है ना? तो मिनिमाइज वैल्यू तो हमें मिलेगी हमेशा. बहुत से बहुत ये हो सकता है कि 0 मिल जाए ओरिजिन पे जाके, लेकिन मैक्सिमाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी इक्वालिटी ग्रेटर हो और ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की हो. तो बाय कीपिंग इन माइंड दीज थिंग्स, वी हैव 3 स्पेशल केसेस इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. 3 स्पेशल केस आ सकते हैं भाई. क्या केस स्पेशल आ सकते हैं बताओ? एक केस तो मैंने आपको ये बता दिया कि अनबाउंडेड वाला आ जाए कुछ इस टाइप का, और क्या केस पॉसिबल है, क्या माइंड में आ रहा है बताइए? सर कोई कोऑर्डिनेट कोई वो जो है ना क्वाड्रेंट वो फिक्स ना हो. फिक्स मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि आपको सेम वैल्यू मिल जाए दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, ऐसा भी तो हो सकता है, जी. जी सर. है ना? जैसे 160 जो थी 4,2 पे भी आ जाती है और मान लो 2,6 पे भी आ जाए, तो एक केस ये हो जाएगा स्पेशल, है ना? इन सबको डिस्कस करेंगे अभी. और क्या केस हो सकता है? सर लाइंस इंटरसेक्ट ना करें. हाँ, मतलब एक केस ये हो सकता है कि आपके पास रीजन ही कॉमन ना आए, कुछ इस टाइप का हो जाए कि ये ऊपर चला जाए और इसमें ये नीचे, है कि नहीं? तो कॉमन रीजन ही नहीं है आपके पास, ऐसा भी तो हो सकता है. तो दीज आर द पॉसिबल डिफरेंट केसेस. सो लेट अस टेक सम स्पेशल केसेस. इनको अपने नाम दिया सर 3 special. वेरिएबल्स वाले को ग्राफिकल मेथड सोल्व कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें सिंप्लेक्स लगाना पड़ेगा. ओके सर. जी, दैट इज द जनरलाइजेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड. सो 3 स्पेशल केसेस आर देयर. तो ये जो आपने नाम बताया कि एक 2 पॉइंट्स पे सेम, देखो ऑप्टिमम वैल्यू हमेशा ध्यान रखो यूनिक होगी, जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो यूनिक होगी. बस ये हो सकता है कि इट मे बी एट मोर देन 1 पॉइंट, 2 3 4 5 पॉइंट से मिल सकती है ना, लेकिन होगी वो यूनिक, क्योंकि ऑप्टिम मैक्सिमम का मतलब ही है कि देयर इज नो वैल्यू विच इज ग्रेटर देन दैट वैल्यू. ये बात क्लियर है ना सबको? Yes, sir. सर चलो, तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस इज अल्टरनेटिव ऑप्टिमा. अल्टरनेटिव ऑप्टिमा वो ये है कि आपके पास अल्टरनेट सॉल्यूशन अगर आ रहा है,
एज द नेम सजेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, यानी कि यू हैव मोर देन वन पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग योर ऑप्टिमम वैल्यू, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। तो इसे डायरेक्ट प्रॉब्लम से एक्सप्लेन कर दूं भाई इस केस को, क्या Yes, sir. बताइए, है ना? सर डायरेक्ट प्रॉब्लम से कर प्रॉब्लम दीजिए। से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा ना। अल्टरनेटिव का मतलब वही है व्हेन you can say when optimum value exists at more than one point, है ना, एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर ऑप्टिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। जैसे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, इसकी प्रॉब्लम नंबर 329 है, पेज नंबर 76। यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द एलपीपी। यार प्रॉब्लम में लिखा होगा आपका यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व, ये अगर नहीं भी लिखा है और जैसे ही आप देखेंगे कि प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल्स हैं, यू विल अप्लाई ऑलवेज ग्राफिकल मेथड सब्जेक्ट टू द constraints x1 plus 2x2 less than equal to 5, x1 plus x2 less than equal to 4 and x1 x2 they are non-negative। ये एक प्रॉब्लम है, देखिए डायरेक्ट प्रॉब्लम ले लिया हमने। आई विल एक्सप्लेन द मेथड हियर। तो सिंपल प्रॉब्लम है, ग्राफ आप इसका इजीली प्लॉट कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो x1 पर हाउ मच 5 इंटरसेप्ट, है ना? यस सर x2 पे सर इसमें जो है डिस्क्रीट प्रॉब्लम्स ही आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी? मतलब सर इसमें वो तो होगी ना, वर्ड प्रॉब्लम के साथ तो आएगा ना क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ना ऐसे आएगा बस, बाय ग्राफिकल वैसे मेथड आएगा? सॉल्व। बस ही आएगा। हाँ, अगर वो वर्ड वाला वर्ड आया प्रॉब्लम तो नहीं? सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। अगर वर्ड वाला आया तो मैंने आपको बता ही दिया है। नहीं बता तो दिया ना, तो पूछ रहा था मतलब कोर्स में है बनेंगे हमारे, पूछ रहा हाँ कोर्स में है भाई, आपका फॉर्मुलेशन तभी तो पढ़ाई है, ठीक ठीक ठीक। फॉर्मुलेशन तो अभी तो पढ़ाई है। अभी तो अगर सर उसमें जो आपका आपने ऑफलाइन एग्जाम होता तो उसमें दे दिया जाता। अब ऑनलाइन में तो आपको फॉर्मुलेट कराने के लिए लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि अगर मैं क्विज लूंगा जी तो जी क्विज में तो मैं आपको 4 जी ऑप्शन नहीं दे सकता, जी जी है जी ना? जी जी तो क्विज में तो बेसिकली आई विल आस्क द प्रॉब्लम। लेकिन वैसे अगर आपका कोई रिटन एग्जाम हो रहा होता है तो वहाँ फॉर्मुलेट के लिए प्रॉब्लम आती है। जी 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 कहीं अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठे हैं, कैट वगैरह में भी आती हैं कि आपको प्रॉब्लम दे देंगे कि साहब एक कंपनी के पास ये प्रॉब्लम थी, उसके पास इतनी मशीन्स थी, इतना टाइम था, इतने वर्कर्स थे, इतनी प्रोडक्शन था, तो इसकी आप एक प्रॉब्लम बनाइए। तो जहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वहाँ आती है फॉर्मुलेट करने के लिए। पहले जब CSR नेट का एग्जाम होता था जो MSc के बाद दिया जाता है, अब वो फुल ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन पहले इट यूज्ड टू बी ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, तो उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है भाई, करें इसे। सो दिस इज योर फर्स्ट Yes, लाइन। sir. यस सर यस सर। x1 पर 5 हो गया, x1 पे हो गया 2.0, 5/2, and because it is less than, so I will take inside region. Second line is x1 x2 less than equal to 4, so it will be this line. Suppose here it is 0, 4, सर ये 2/5 आएगा ना? 4, ओके 2/5 आएगा। 5/2 इसलिए। नहीं यार 5/2 ना, हाँ 5/2 है, ठीक। नीचे हो जाएगा ना। 5/2 होगा सर। जी जी वही लिखा है। और x1 x2 पॉजिटिव है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो द फीजिबल रीजन यू गॉट हियर, है ना, सिंपल है, ये आ गया। एंड यू गॉट दिस इज O, सपोज दिस इज A, B and C. So I know that here you will be having your optimum solution. So your extreme points, O is 0, 0, A is 4, 0 and B calculate कर लीजिए भाई, कितना आ रहा है? 3,1 3,1 and what about C? 0, 5/2, है ना? 5/2। और यहाँ पर आप लिख देंगे वैल्यू ऑफ Z। देखिए बताओ जरा भाई, व्हाट इज एट O, 0 एट A? 0 सर। A पे भी 0? 4
नहीं सर, Who for the 8? 8. Okay. At B, 10, 10, at C, 10. 10. 10. अब देखो ये आपके पास टू वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम थी। मिनिमाइज अगर होता यही तो आपका आंसर 0 आ जाता, बट इट्स अ मैक्सिमाइज प्रॉब्लम। तो यू गॉट 10 एट 2 पॉइंट्स B, C। तो ये जो B है और C है ना, इन 2 पॉइंट्स पे यू आर गेटिंग द सेम ऑप्टिमम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो चाहे तो B स्ट्रेटजी लगा ले या चाहे तो C स्ट्रेटजी लगा ले, दोनों ही केस में उसको क्या होगा, सेम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सर प्रोडक्शन के केस में तो सर इसको छोड़ देंगे ना सी वाले को। हाँ, प्रोडक्शन केस में छोड़ देंगे, वो तो फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन कोई और अगर प्रॉब्लम होती, जैसे जिस भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया इन्होंने, यहाँ पे तो डायरेक्ट प्रॉब्लम लिखी है इन्होंने ये, तो उस केस में आपके पास अगर कोई और चीज होगी तो हम इस ऑप्शन को ले सकते हैं, है ना। सो सर हियर क्योंकि वो तो कभी उसमें रेशियो में नहीं आएगी ना। जी, सो हियर यू कैन से दैट, हाँ वैसे अगर नंबर ऑफ, इफ इट इज शोइंग नंबर ऑफ क्वांटिटीज तो इट विल बी सम नंबर, है ना, कुछ नंबर आएगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। सो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 10 एट 3,1 एंड 0,2.5. So this is the case. We say hence, you can say hence alternative optima exist. Alternative optima exist. अच्छा, अब इसमें एक चीज और कि इफ यू आर गेटिंग 2 पॉइंट्स, तो उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन आएगी, ये लाइन सेगमेंट हो गया ना, अब तो ये इट इज लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आपको यही वैल्यू देंगे, समझे। Yes, अगर sir. अगर B, Yes, sir. Yes, sir. क्यों ऐसा क्यों सॉल्यूशन है वो ना सर। है, क्योंकि ये आपका इसका अगर एक तरीके से सॉल्यूशन हो गया है ना। अब आपका क्वेश्चन क्या है, 2x1 ये सॉल्यूशन हो गया इसका, तो ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। तो अगर 2 पॉइंट सॉल्यूशन है तो उनको ज्वाइन, उनके कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम ले वो भी सॉल्यूशन होता है ना, आप चेक कर जैसे सकते उसकी हैं। उस लाइन पे कोई पॉइंट ले लेंगे। होता नहीं होता है, तो अगर आपके पास जी, 2 जी। पॉइंट्स अगर ऐसे मिल गए विच आर गिविंग यू द सेम वैल्यू, तो उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपको सेम वैल्यू देंगे। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं चेक करना चाहूँ, मान लो इनका मिड पॉइंट ले लूँ मैं, 3 + 0/2 3/2 मिड पॉइंट ले लिया है ना, और 5/2 + 1/2 कितना हो गया, 7/14। 5/2 + 1/2 कितना हो रहा है, 7/4। 4। रख के देखो जरा, देखो रख के जरा, 2 × 3/2 + 4 × 7/4 कितना आया, 10, है ना। पहले तो मैंने एग्जाम्पल लेके वेरीफाई किया है। तो अगर आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू आर गेटिंग ऑप्टिमम वैल्यू एट 2 पॉइंट्स, तो आपको कितने पॉइंट्स पे मिल जाएगा इनफैक्ट वो, Infinite. इनफाइनाइट पॉइंट पर सर। इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, है ना, क्योंकि हर 2 पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट मैनी। इनफाइनाइट। तो wherever alternative optima exists, in fact you will be getting infinite many options, है ना, keep in mind because of this concept कि solution है ये। तो you can say that this space नहीं है इसलिए मैं आगे यही लिख दे रहा हूँ, this implies that infinite number of values, infinite number of values of x1 and x2 can give you the, है ना, कहाँ पर करेंगी ये, lying on the segment, lying on the, नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, lying on the segment joining x1 and x2 will give what, max z is equal to 10, will give you maximum of z is equal to 10. Okay.
यस सर। हाँ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। सेकंड, ये केस क्लियर हो गया भाई आपको? Yes, इसे आप जी डायरेक्ट, जी Yes, sir. इसको आप डायरेक्ट प्रॉब्लम देख के भी बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अल्टरनेटिव ऑप्टिमा है या नहीं है। कैसे बता सकते हैं? देखो इस प्रॉब्लम को कुछ खास बात दिख रही है इस प्रॉब्लम में? कुछ दिख रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो क्या है, 2x1 + 4x2 है ना, कॉमन आ रहा है 2। और ये देखो इसका तो एक रेशियो में है ये। फर्स्ट कांस्टेंट देखिए। हाँ, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। यानी कि यू कैन से इनफाइनाइट ये वाला, सॉल्यूशन। मतलब दे आर पैरेलल। यू कैन से कि अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो ये पैरेलल आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो लाइन आएगी दैट विल बी पैरेलल टू द कांस्टेंट लाइन, है ना। देखो कांस्टेंट भी हो सकती है सर, कांस्टेंट भी हो सकती है। है, ये जो कांस्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है 2x1 + 4x2, ठीक है, और एक कांस्टेंट ये वाला जो होता है x1 + 2x2। अब इसके इज इक्वल टू कुछ भी आए, सपोज यहाँ 10 था या कुछ a था, यहाँ सपोज कुछ b है। देखिए ये लाइन कैसी है आपस में, पैरेलल, स्लोप पैरेलल स्लोप लाइन। सेम है ना, इधर 2 से डिवाइड कर दो, ये यस क्या सर। बन जाएगी, x1 + 2x2 = a/2। तो स्लोप तो दोनों का सेम आएगा। तो whenever your objective function is parallel to any given constant, you will always have this alternative optima solution। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम में अगर आपको दे रखी हो कोई प्रॉब्लम और ऑप्शन दे रखे हो कि बताइए इस प्रॉब्लम में अल्टरनेटिव ऑप्टिमा है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो दिस कंसेप्ट यू कैन सेव योर टाइम। डायरेक्ट आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट में कुछ रिलेशन है क्या। अगर ये रिलेशन आपको दिख गया तो डायरेक्ट यू कैन राइट कि बिकॉज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू द बाइंडिंग कांस्टेंट, है ना। तो यू कैन राइट हियर दिस द आइडेंटिफिकेशन। कहाँ गया भाई? हाँ, सो हियर वेन एवर, सर एंड होने वाली है क्लास। कोई बात नहीं, एंड हो जाएगी तो कल शुरू करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। whenever objective function is parallel to the binding ऑप्टिमम constant, फंक्शन। बाइंडिंग कांस्टेंट यार, वो कांस्टेंट से बाइंडिंग, ये कांस्टेंट जो होते हैं ना ये बाइंडिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो किसी भी कांस्टेंट के अगर पैरेलल है ना, देयर एग्जिस्ट एन